Good evening, guys. Now moving to our next topic, rain. So let us go back now to the question how clouds are formed and bring us rain. So किस तरह से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं और किस तरह से वो रेन लाते हैं. So we could start by doing a simple experiment which demonstrates some of the factors influencing these climatic changes. So we have given one activity. Just you have to read it once and perform an activity at your home also. You can do it. So the experiments replicates on a very small scale. So what happens when air with a very high content of water vapor goes from a region of high pressure to region of low pressure or vice versa? See what happens here. The air with high content of water vapor. अब समझो कि जैसे सनलाइट अर्थ के ऊपर गिरती है और जो भी वाटर के सोर्सेज हैं उसमें से वाटर इवापोरेट होता है और वो उसकी वेपर वाटर की वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में ऐड होती है और फिर वही हाई कंटेंट वाली जो वेपर होती है वो यहाँ से हाई रीजन से लो रीजन के तरफ मूव होती है. सो व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे a large amount of water evaporates and goes into the air. तो जब वाटर बॉडीज़ जो हैं दिन के टाइम में गर्म होती हैं और उसकी जो वेपर होती हैं वो एयर के अंदर ऐड होती है. सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो गेट इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़. बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में जैसे हम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं. एट दैट टाइम दे ऑल्सो रिलीज सम वाटर. देन प्लांट्स का ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है. They can also produce the water vapor into the air, and these air also get heated. So the hot air rises up carrying the water vapor with it. So when the air will become heated and it moves towards the upper in direction, at that time they can also take up some water vapor on the upper region or higher altitude. As the air rises it expands and cools. जैसे एयर ऊपर जाती है तो वो एक्सपांड होती है, वो कूल होती है, एंड दिस कूलिंग causes the water vapor in the air to condense in the forms of tiny droplets. तो जब ये वाटर वेपर ऊपर जाकर ठंडी होती है इट बिकम्स कूल. ठंडी होने के साथ साथ वो वाटर फाइन वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है. Very fine drops which is known as the droplets of water, and this condensation of water is facilitated if some particles could act as the nucleus for this drop to form around, and there are normally dust and some other suspended particles in the air perform this function. So here very fine droplets of water is formed, very fine. Now what happens, they will condense, मतलब कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के तीसरे पार्टिकल के साथ कॉम्बिनेशन करके बिगर ड्रॉप बनेगी. बट फॉर दैट दे नीड अ न्यूक्लियस, अ सेंटर एटम कि जिसके साथ उनका ये कंडेंसेशन हो सके. तो वी हैव सम एयर डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर एंड जस्ट अराउंड इट दिस फाइन droplets of water arranged and become a bigger drops of water. Once the water droplets are formed they grow bigger by the condensation of these water droplets, and when the water drops have grown big and heavy they fall down in the form of rain. तो ये ड्रॉपलेट जो है वो बिग होते 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 इतने बड़े हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं कि फिर वो वहाँ ऊपर सस्टेन नहीं कर पाते हैं. ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ दे फॉल डाउन ऑन द अर्थ and which is known as rain. Sometimes when the temperature of air is low enough
then the precipitation may occurs in the form of snow or sleet or hail. तो टेम्परेचर इतना डाउन होता है तो ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो कंडेंस होकर स्नो बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्नोफॉल या स्लीट, या तो फिर हेल्स भी हो सकते हैं, ओले पड़ना. Now, rainfall patterns are decided by prevailing wind patterns. In large parts of the India, rains are mostly brought by the southwest or northwest monsoon. तो ये जो रेन होती हैं उसको लाने का काम करते हैं ये विंड, क्योंकि विंड के साथ मॉइस्चर यहाँ वहाँ घूमता है, बादल यहाँ वहाँ घूमते हैं. इन इंडिया अगर प्रॉपरली बात करी जाए तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है, मतलब कि वहाँ से आने वाली जो हवाएं होती हैं वो मानसून लेकर आते हैं. यू हैव लिसन, अभी भी अगर आप देखो तो न्यूज़ में कई बार आता होगा, अभी भी चल रहा होगा लाइवली कि भाई डिप्रेशंस इन द बे ऑफ बंगाल हैव कोज रेन्स इन सम एरियाज बिकॉज ऑफ दिस. So guys, now the next topic is air pollution. So we keep hearing of the increasing levels of the oxides of nitrogen and sulfur in the news, and people often bemoan that the fact the quality of air has gone down since their childhood. तो ये आपने सुना होगा कि भाई जो लेवल ऑक्सीजन का जो पॉल्यूशन है वो एयर का जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है. We have also heard about that the oxides and the sulfur and nitrogen is also increasing day by day, and we have also heard that the quality of air is decreasing day by day. अगर हम बात करें तो भाई आज से 20 साल 15 साल 25 साल पहले की बात करें तो at that time the air is not so hot and so not polluted. So why it is so? ऐसा क्यों हुआ? And how is the quality of the air affected, and how does this change in quality affect us and other type forms? तो पहले दो क्वेश्चन है, एक तो ये कौन सी इफेक्ट हुई जिससे ये एयर पोल्यूशन हुआ, और अगर दूसरा क्वेश्चन ये है कि एयर पोल्यूशन से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हो सकती है, हमारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसकी क्या इफेक्ट हो सकती है. So the fossil fuel like coal and petroleum contain small amount of nitrogen and sulfur. सो अगर आप फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो फॉसिल फ्यूल के अंदर पेट्रोलियम है, कॉल हैं, एंड द थिंग इज़ दैट कि वी आर इंक्रीजिंग द यूजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ द फ्यूल्स. डे बाय डे इन फ्यूल्स का लेवल जो है वो यूज़ करने का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है. And the thing is that this type of fuels, nitrogen and sulfur, coal and petroleum contain some amount of nitrogen and sulfur, जिससे जब आप उसको बर्न करते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं. अब जितना ज़्यादा कॉल जितना ज़्यादा पेट्रोलियम यूज़ होगा उतना ही ज़्यादा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वो रिलीज़ होंगे. So when these fuels burnt, nitrogen and sulfur too are burnt, and this produce different oxides of nitrogen and sulfur. Not only is the inhalation of these gases dangerous, they also dissolve in rain to give rise to acid rain. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो आपके इनहेलेशन में आएंगे और आपके बॉडी के अंदर कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीज़ प्रोड्यूस करेंगे, साथ ही साथ वो एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं. So the combustion of fossil fuels also increases the amount of suspended particles in air. Suspended particles मतलब यहाँ वहाँ घूमते हुए कार्बन के पार्टिकल्स, सल्फर के पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सब. एंड द सस्पेंडेड पार्टिकल्स कुड बी अनबर्न्ड कार्बन और सब्सटेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एंड प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल्स ऑफ दिस पॉल्यूटेंट causes visibility to be lowered, especially in cold weather when water also condenses out there. And you have heard in the every winter दिल्ली लाइक सिटी, दिल्ली में क्या होता है तो आप देखें कि इनकी जो विजिबिलिटी होती है वो लोअर हो जाती है. अर्ली मॉर्निंग में देखो तो 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक 10 बजे तक वहाँ पे विजिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि दिस टाइप ऑफ दिस स्मोक्स रिएक्ट विथ वाटर मॉइस्चर प्रेजेंट इनटू इट एंड दे फॉर्म अ फॉगी स्ट्रक्चर. दिस इज़ नोन एज स्मोक एंड इज़ अ विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन. मतलब जितना ज़्यादा स्मोक का फॉर्मेशन होगा समझो कि वहाँ का पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा. Studies have shown that the regularly breathing air that contains any of this substance increases the incidence of allergy,
कैंसर एंड इवन हार्ट डिसीज़। तो अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है, हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन होगा, वहाँ पर एलर्जीज़ के प्रॉब्लम्स, कैंसर जैसे डिसीज़, हार्ट डिसीज़ जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। एंड इंक्रीज द कंटेंट ऑफ दिस हार्मफुल सब्सटेंस इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। और इसी तरह के एनवायरनमेंट को या इस फिनोमिना को हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। So now what can you say about the levels of the polluting substance near roads and away from the roads? You have given activity में क्या है? सपोज आप देखो कि आप रोड के ऊपर, रोड साइड में खड़े हो, या स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो आप सिग्नल्स के ऊपर खड़े हो, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, देन यू फील द सफोकेशन एंड वेरी हॉट वेदर एटमोसफियर एट दैट टाइम। आपको गर्मी बहुत लगेगी बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड्स coming out from the smokes of the exhaust from the vehicles, which are oxides of the nitrogen and sulfur, carbon dioxide also it is there. So due to this type of the gases you can feel the suffocation and as well as very hot atmosphere. But if you are away from the road, अगर आप रोड से दूर हैं तो आप देखेंगे कि आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर ये एयर पोल्यूशन खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वाटर, इट विल बी सीन इन द नेक्स्ट लेक्चर।